Good. Over to you, ma'am. Aarti Patil, ma'am, over to you. Hello, everybody, and this is a very unique type of a program that I am attending today for the first time. And it happened so suddenly कि कल ही हमारी बात हुई थी, and I was added, and then today the program happened. Yeah. And it's really a very good opening for everybody who has some talent. And my only problem is my Hindi is not as good as the Hindi that I'm listening to, because मेरा थोड़ा बम्बईया हिंदी हो जाता है. I've been born and brought up in Mumbai, so this kind of Hindi I won't be able to share. But then I have studied Hindi, so थोड़ा बहुत तो बात कर लेती हूँ. But इन लोग के स्टैंडर्ड का नहीं बोल पाती हूँ. कोई बात कोशिश रहेगी, and maybe with advance in this program, I will pick up good style Hindi also. That's very modest of you, ma'am. Very, very modest. आप जो भी And भाषा all में of you बोलिए, are, हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलिए, जो भी बोलिए, सब हमें समझ हाँ आता है. वही तो कर रही हूँ अभी. That's what I'm Yeah, doing very now. But nice, very nice. hopefully I will be able to do better next time. Now आज मेरे को थोड़ा बहुत तो अंदाजा आया कि what this platform is like and what are the types of programs that will go on here. So I'll be better prepared next time. And I was so happy in लोग को मिलके that at this age and after so many things that have just happened in their lives, they are still so strong and facing life so boldly. It requires a lot of courage. Yeah. And yeah, I mean, to accept facts that are never going to change. And at this age, it becomes a little difficult. Yeah. But then they are doing it so bravely. They are really a source of inspiration to all of us. Absolutely. So, And I also want to tell you that we are making a recording of individual storytelling, like आपकी कहानी, आपकी ज़बानी. तो मैं आपसे टाइम लेके आपसे साथ बैठ के आपको क्वेश्चन पूछूंगी और आप अपने आंसर बोलोगे. We'll record it and then we will publish it on the YouTube, and then after that we are going to make it into a book, a podcast and a book. So many people are not coming forward. I don't know why, but those who have come forward, they have already done the recording. श्रुति जोशी has shared her story with me. प्रतिभा जी ने नहीं शेयर किया है. ठीक है, आप बोलिए मैडम. Sorry to interrupt you. You were saying something. No. Yeah, you can carry on. This is information to me also, so it doesn't matter. So whenever you want us to share something, you can approach. Yeah, thank you very much. That will be one-to-one, no? Yeah, one to one में बैठ के हम लोग आधा एक घंटा बातें करेंगे. उसमें से सब important stories telling आपकी जो life के story points हैं, we will take it down. Okay, so then now Manjula ji, you want to share? मैडम मैं बोलती हूँ. मैं अपने रियल लाइफ इंसिडेंट बताती हूँ. बताइए. करीब 19 साल पहले 26 जुलाई 2005 when Mumbai came to a standstill due to flooding. Yeah. सबको याद है उतना पुरानी बात. ये अपनी मुंबई तो अरेबियन सी के कोस्ट पे है स्थित. उस समय हजारों लोग मारे गए थे. हेवीएस्ट रेन्स हुई थी जो कि अगले हफ्ते तक भी कंटिन्यूअस होती रही. मैं उस समय क्या था कि बेंगलोर में थी और मेरे दोनों बच्चे बेटा बेटी वो लोग मुंबई में थे. हस्बैंड की पोस्टिंग बेंगलोर में और बच्चे में. मैं दोनों जगह आना जाना करते रहती थी. हम लोग पनवेल में थे. बच्चे वहां पे पढ़ रहे थे. तो क्या था, जब मैं बेंगलोर से ये हुआ कि मुझे बॉम्बे आना था उसी दिन. हम लोगों को पहले तो नहीं मालूम था कि वहां पे ऐसा होगा. तो एयर टिकट नहीं मिल रहा था और लोगों ने ट्रेन से भी जाने को बोला कि ट्रेन का भी टिकट नहीं मिल रहा. तो बस जाती थी मुंबई टू बेंगलोर. तो बस में बैठी मैं और बस में बैठ के जाने के लिए जब बैठ गई तो रास्ते में खूब घनघोर वर्षा होने लगी, खूब जोरदार. और बस भी कैसे चले एकदम, क्योंकि पूरा भरा हुआ था. धीरे धीरे चल रही थी. बहुत देर बाद रास्ते में एक जगह नाइट हॉल्ट किया कि सब लोग अपना टॉयलेट वगैरह जा सकें. तो बस से टॉयलेट की दूरी जो ऐसे सूखी तो आदमी चला जाता है. रास्ते में भी पानी भरा हुआ था. कैसे उस होटल में जाएं और अपना कुछ भी करके आए. और मेरे हस्बैंड को जब ये पता चला कि बेंगलोर से, वो मुझे फोन कर रहे, फोन नहीं लग रहा था. तो वो बहुत परेशान हो गए और उनको ये खबर मिल गई थी कि मुंबई तो पानी में डूब रही है. और उधर मेरा बेटा जो है वो अपने वर्क प्लेस से वहां बाहर यहाँ घर की तरफ लौट रहा था. तो रास्ते में बारिश शुरू हो गई तो उन लोगों को बस वाले ने रास्ते में उतार दिया
उधर दादर वादर चेंबूर के पास, कि अब आगे बस नहीं जाएगी, तुम लोग पैदल जाओ। और रास्ते में उन लोग चले और खूब पानी, यहाँ तक पानी, और धीरे धीरे पैदल चलते चलते, और रास्ते में सब मरे हुए जानवर और जो बह गए थे वो सब करते करते वो उतनी दूर से कब से चला होगा, फिर पनवेल पहुंचा घर में। तभी उसको घर में पहुंचा तो पापा का उसके फोन आया कि मम्मी है रास्ते में बस में और बारिश हो रही है, मम्मी को रिसीव करना है। तो उसने बोला अच्छा ठीक है। उसके एक दिन पहले क्या हुआ था, उसका फ्रेंड उससे मिलने आया था, और वो फ्रेंड जब जाने लगा तो बारिश हो रही थी, तो बोला तुम अपनी कार मेरे को दे दो, कार मैं ले आऊंगा। उससे एक दिन पहले वो लेके चला गया, तो हमारे घर में कार भी नहीं, तो वो कैसे जाऊं ये सोच रहा था। फिर क्या हुआ कि आज इतनी बारिश हो रही थी तो वो आ नहीं सकता था बंदा। मेरे बेटे ने हमारे पड़ोसी की आंटी से बोला कि आंटी मम्मी आने वाली है, आप अपनी कार दे दीजिए। उन्होंने अपनी कार उसको दे भी दिया। अब वो कार लेके वहां पहुंच गया उस टाइम पे, पर बस आई खूब लेट खूब लेट। तब वो बेटा खुद जो पानी में चल चल के आया था, पूरी उसकी उंगलियां ऐसी गली 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 टाइप की जो हो जाते हैं देर तक पानी में रहने से, वैसी हो गई थी। पनवेल में जो मैकडोनल्ड का है वो पूरा पानी में डूबा हुआ था, और कुर्सियां वहां पे तैर रही थी। खैर हम लोग मैं उतरी वहां पे उसको देखी तो हम लोग बहुत खुश हुए, एक दूसरे के गले लगे। और फिर अपने घर पहुंचे, अपने हस्बैंड को फोन से इन्फॉर्म किया, बताया कि हाँ ठीक ठाक पहुंच गए, भगवान को धन्यवाद दिया। ये कहावत भी चरितार्थ हुई कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। तो बिल्कुल हमको तो ये बरसात की वो वाली जर्नी कभी भूलेगी नहीं, नहीं, एकदम वो हो गई थी। नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। वेरी नाइस। आई थिंक सबके ये पास एक ना एक रियल कहानी लाइफ है। स्टोरी है। या सबके पास कहानी है। हाँ 2005 की जो थी ना, सारी रियल प्रॉब्लम लाइफ थी। स्टोरी। टू लाइफ स्टोरी। आप लिख के पब्लिश करो मैडम। और और आप, आपने जो वो हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं। उस आपने जो वो उसपे पिक्चर दो, एक फोटो दो दी हुई है, तो उसमें मेरे को ये लगा कि एक तो एक छोटा लहलहाता हुआ हरा भरा पेड़ है जो कि सूर्य की प्रचंड गर्मी से मुरझा रहा है, उसकी जड़ें भी सूख रही हैं, प्यासी हो रही हैं। और दूसरा जो है वो नन्हा सा सैपलिंग है, उसको बारिश की बूंदों से जीवन प्राप्ति हो रही है, तो वो आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हो रहा है। उस, उसके बारे में मेरी ये राय। हाँ, सही है। और जो भी आप सोचो वो सही है, उसमें कोई फिक्स्ड नहीं है कि क्या थॉट प्रोसेस है। बस उसमें ये मैंने बोलने की कोशिश की है, मैंने नहीं बोलने हम्म की कोशिश की, जहाँ से मैंने देखा है कि जो जड़ें हैं ना, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। और जो हमने आज जो दो पोइट्री भी हम्म सुनी ना, उसमें ये कहा गया कि जब बहुत जोर से आंधी आई, बवंडर आया, बारिश आई, तो जो जड़ें जिसकी कमजोर थी वो पेड़ उखड़ गए। हम्म तो जड़ें उखड़ जब गए। हमारी मजबूत होती हैं तो हम खड़े रह सकते हैं, हम आंधी का हम्म तूफान का मुकाबला कर सकते हैं। तो अपनी जड़ें जो हम्म है वो है हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, जो भगवान हमें शक्ति देता है, वो हमें अपने अंदर बना के रखे जाना है। अभी सुचि जी भी बोल हम्म रही थी, सुचि जी निकल गई हैं अभी, उनके भी बेटा बहुत तबीयत ठीक नहीं है शायद उनका अभी, जो सुमन लता जी हैं उनके साथ भी यही हुआ है। सो वी हैव टू बिकम वेरी स्ट्रांग, दैट इज द मेन थिंग। स्ट्रांग तब बनेंगे जब हमें हमारी जड़ें मजबूत करनी है। तो वो उसका मतलब है, उसका कोई भी मतलब निकाल सकते हैं, सब मतलब सही है। ओवर टू यू श्रुति, यू वांट टू शेयर। Shruti Joshi, here we have another girl. She has gone through a lot in her life, and you can see it on the YouTube. We have put up her life story also. And over to you, Shruti. थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी तो थोड़ी मजेदारी इंसिडेंट है जो मैं शेयर करूंगी बरसात से रिलेटेड। हम लोग छिंदवाड़ा में रहते थे, तो छिंदवाड़ा से नागपुर हमको हमेशा आना पड़ता था अगर मुंबई आना है तो। और उस समय ऐसा था कि हम उस दिन, मतलब जिस दिन हम लोग छिंदवाड़ा से नागपुर आने वाले थे ना, तो हमारी कार अवेलेबल नहीं थी। तो हम लोग ने सोचा, सुश्रुत वगैरह ने बोला कि हम लोग एसटी बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। तो मतलब मेरे हस्बैंड के कोई फ्रेंड थे, उन्होंने बोला कि अब जा तो रहे हो ठीक है, पर साथ में अपने साथ अम्ब्रेला भी ले लेना। तो मेरे हस्बैंड बोला अम्ब्रेला क्यों? तो उन्होंने वो हंस दिए। हम लोग बैठे बस में, फर्स्ट टाइम वो धड़र धड़र धड़र, बहुत रास्ते भी खराब और ऐसे वैसे। तो बहुत जम के बारिश हुई, बहुत ज्यादा बारिश हुई।
तो वो जो एसटी बस थी ना, ऊपर से बहुत टपकने लगी, मतलब बहुत पानी आ रहा था, तो इसलिए सब लोग बस में अपना अपना अम्ब्रेला खोल के बैठे थे। इसलिए फिर तो वो हमको बहुत ही अजीब सा लगा कि अरे क्या मजेदार है, बस के अंदर सब लोग अपना छाता खोल के बैठे हैं, वहां टपक रहे। तो वो मेरा इंसिडेंट मैं कभी नहीं भूलती हूँ। सब लोग मस्त एंजॉय कर रहे हैं, सौसर आया, सब लोग ने अपना ये खाया, पोहा वगैरह मिलता था, पकोड़े सब मिलते थे, खाए। वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है इंसिडेंट, क्योंकि कभी कभी हमको कुछ अलग भी ट्राई करना चाहिए। हमेशा अपने एसी कार में बैठ के घूमो ये वो, उससे अच्छा कभी कभी अलग ट्राई करेंगे तो हम लोग थोड़ा नई चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे। इसके अलावा मेरा जो बरसात का सीजन है वो मेरा बहुत बहुत फेवरेट है, क्योंकि उसमें बहुत रोमांटिक होते हैं हम लोग, फिर पोएट्री लिखने का मन करता है। और मुझे तो ऐसा है कि वो तारों के ऊपर जो बूंदे क्या बातें करती है, मैं ये सोचती हूँ। या फिर पत्तों पे जो बूंदे रहती है ना, तो वो क्या सोचती होंगी, मैं उसके फोटोज लेती हूँ। तो मुझे मुझे तो पर्सनली अगर पूछा जाए तो मुझे बरसात का मौसम बहुत बहुत अच्छा लगना चाहिए किसी चीज का। अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो वो भी हमको तकलीफ नहीं देगी। हम लोग क्या कर रहे हैं, सब गंदगी फैलाते हैं, तो नेचुरली वो फ्लड एंड ऑल दैट विल गोइंग टू हैपन। Yeah. सो मुझे तो बरसात मतलब मेरा सबसे प्रिय और बहुत फेवरेट है। पर मेरे को सब एक चीज नहीं अच्छी लगती है, जब कोई मेरे को पकोड़े बनाने को बोलता है तो मैं फिर क्योंकि हाँ, तो फिर मुझे मतलब क्यों लेडीज को ही सब लोग बोलते हैं उठ पकोड़े बना, चाय बना अदरक वाली, वो चीज मुझे बहुत अखरती है। भाई मैंने भी ठेका लिया है क्या सब पकोड़े और चाय बनाने का? और ऐसा वक्त होता है कि तब कोई कुक या कोई भी नहीं आता काम करने के लिए, हाँ, हमको खुद करना पड़ता है। बट देन आई डोंट प्रिपेयर, एंड इफ आई एम प्रिपेयरिंग देन आई वोंट हेल्प, and you people should help me, then only I'll prepare. That is my condition. very Then nice. everyone goes into the kitchen and that's it. तो आपने अपना जो रूल्स क्लियर कर दिए ना घर में कि सब लोग कटिंग करो, सब लोग सब्जी काटो, आलू काटो, प्याज काटो, बेसन Yes. मरो, तो वो हो जाता है। वेरी नाइस, वेरी हाँ, और कितना मजा आता है, टीम जैसा लगता है ना फिर। वेरी गुड। या एक्चुअली थैंक यू, थैंक कोई यू। आपके फैमिली में कोई अगर सुन रहा है या सुनने वाला है, कोई हेल्प करने वाला है किचन में, तो बहुत खूबसूरत बात है। हमारे घर में अगर हम बोलेंगे ना तो कोई सुन ही नहीं रहा होता है, वो इधर देख रहे उधर देख रहे, इधर देख रहे उधर देख रहे, तो फिर हम ही उठ के बना देते हैं, चलो भाई मरो, तुम बेसन मरो, खाओ पियो, सब लोगों को गर्म करके खिलाओ। बट आई लाइक टू मेक द बेसन का पकौड़ाज वेरी मच, एंड आई लाइक टू मेक चाय फॉर एवरीवन। मुझे अच्छा लगता है जब भी ये लोग कभी कभी ग्रुप में बैठे होते हैं ना। हमारी फैमिली में 4 जनरेशन्स हैं। मेरी मदर इन लॉ है, मैं हूँ, और मेरे बच्चे हैं, और एक छोटा बेबी है। तो 4 जनरेशन एक ही साथ हम टीवी देख रहे होते हैं कभी कभी। मुझे टीवी में कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है, मुझे कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता है टीवी देखने में। तो मैं सबसे पहले उठती हूँ, कोई पानी मांगे, कोई चाय मांगे, कोई कुछ भी मांगे, सबसे पहले मैं उठ के बनाती हूँ, क्योंकि मेरी एक्सरसाइज हो जाती है और मेरे को अच्छा लगता है पकाना और खिलाना। तो उसमें मुझे भी खुशी मिलती है। सो गिविंग इज वन वे टू मेकम हैप्पी। एनीवे, सो हु एल्स हैज कम न्यू नाउ? बीना, शशि मदान जी कहाँ गायब हो गए थे आप? शशि मदान जी वॉल्यूम, आपका वीडियो ऑन करो। मंजुला जी आपका भी वीडियो बंद है, बीना जी का भी वीडियो बंद है। आ ही नहीं रहा। हाँ बीना जी शेयर करो थोड़ा कुछ तो भी, वीडियो नहीं होगा तो कोई बात मुझे बारिश बहुत बहुत पसंद है। I waited and waited for this monsoon. I have been very hot, you know. नहीं। It was really bad, you know. या So when I first saw, oh my God, today is raining, I really went to the terrace and danced there alone. Sometimes I laugh at myself that what am I doing so silly? But I didn't tell anyone. Actually, only my son is with me. So I didn't tell him. I just up and I danced and I love the rain, really. क्या बात है। Because it released all the heat, remember? या And from our windows, no, you know how everything is green. They became more greener. My God.
It was really beautiful to see all those greeneries and the mountain far off my window. So rain is really a good thing for everybody, for everybody. Without rain, we cannot survive, right? So that's it. Very nice. Thank you, Beena ma'am. And how many of you have got wet in this rain? मैं तो जाती हूँ घूमने के लिए और मैं छाता कभी नहीं लेके जाती. Yeah, Shruti has got wet in the rain. So the other Oh, day, I took even I don't take umbrella. Yeah. I'll see people walking with umbrella, but I never take. And obviously, कुछ फायदा भी नहीं. So the other yeah. day, I took my grandchild to the ऐसे वॉक के लिए लेके गई तो वहां पानी भरा हुआ था. उसको ना फिर उसको पानी में छप छप करने को अच्छा लगता है तो मैंने उसको छप छप करने दिया. उसके कपड़ों में मट्टी वट्टी लग गई थोड़ी सी तो फिर वो ऊपर आके मैंने उसको बोला क्वाइट क्वाइट सीक्रेट डोंट टेल मम्मा डोंट टेल मम्मा. तो पहुंचते ही उसने बोला आई वेट इन रेन. मेरी डॉटर लोग बोलती है मम्मी आप उसको गीला क्यों किए बारिश में. मैंने कहा वो तो क्या हाथ छोड़ के भाग गया मैं क्या करूं अभी उसको. तो अगले दिन मैंने मेरी डॉटर लोग को बोला तुम इसको लेके जाओ तुम इसको पानी में मत जाने देना. हाँ तुम नीचे लेके जाओ. फिर वो वापस आके रोने लगी बोली वो मेरी उंगली छोड़ के भाग गया. तो बच्चा है तो खेलेगा ना पानी में और थोड़ा खेलने दिया तो कोई दिक्कत नहीं तुम भी खेलो. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है छप छप पानी में करके मिट्टी उड़ाना और सब वो दलदल में जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. शशि मदान जी वीडियो खोल Yes, लिए. yes. क्या हुआ. शी इज नॉट रेडी आई थिंक. हाँ शशि मदान जी योर अनम्यूट करो ना आवाज नहीं आ रही. ओके 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 सॉरी सॉरी अभी आ रही है आवाज मेरी. हाँ 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 अभी आ रही है बोलिए. हाँ, जी जी जी. मैंने अभी एक्चुअली ज्वाइन किया. हाँ मैंने देखा तभी मैं आपको बोल रही हूँ बोलो जो भी बोलना है नहीं तो फिर गाना गाते हाँ हैं. जी. बरसात हाँ, में गाना तो आप हमसे शुरू करके मिले गाएंगे हम ही. सजन तुमसे एक मिले बात. हम बरसात में. बोलो बोलो क्या बोल रहे हैं बोलो. हाँ मैं ये कहना चाहती थी रेनी सीजन वैसे तो सबके लिए बहुत एंजॉयबल सीजन रहता है क्योंकि ये नए पौधों को उगाने का समय है, नए पेड़ों को लगाने का समय है. और जो जब बारिश में पत्ते ट्रीज फ्लावर सब नहा लेते हैं तो वो जो पत्तों के ग्रीनरी का जो शेड आता है ना डिफरेंट डिफरेंट वो बड़ा प्यारा लगता है मुझे. बिल्कुल ग्रीन के बहुत सारे शेड्स होते हैं उन दिनों देखने के लिए. बिल्कुल. और कई लोगों को ये मौसम सूट भी नहीं करता जैसे मेरे हस्बैंड है उनको सीओपीडी का प्रॉब्लम है हाँ तो उनको ये मौसम सूट नहीं करता. ह्यूमिड हो जाता है एयर तो फिर सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ रहती है, मेडिसिन भी बढ़ जाती हैं इन दिनों में. तो जी. मुझे ये रेनी सीजन बॉम्बे का छोड़ के पंजाब में जाना पड़ता है. अभी आप पंजाब में हो. नहीं अभी जाऊंगी ये लास्ट में जा रही हूँ. ओके ओके हाँ, चलो एक गाना तो तो सुना उस दो. समय कोई कोई तो उस गाना समय बड़ा दुख होता. आप शुरू करो कौन सा गाना गाएं. एक गाना हो जाए. जो भी शुरू शशि, करो एक गाते हैं. गाना हो जाए. शशि, एक गाना हो जाए ना बारिश का. वही क्या तो मैं है? कह रही हूँ. ऐसा सच मैंने कोई गाना अभी सोचा नहीं हुआ. प्रतिभा बहुत कौन सा गाना है बहुत बारिश सारे का. लेकिन एक एक दो दो लाइनें ही एक आती गाना हैं. मुझे याद आ रहा है मैं बताती हूँ आपको. वो साधना गाती है कौन सी पिक्चर थी. ओ सजना, भरत का गाना था. ओ सजना, हाँ, ओ हाँ वो सजना तो सजना, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना, बरखा बहारा, ऐसे रिमझिम रे सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए, सावरे सलोनी घटा जब जब आई, सावरे सलोनी घटा
जब जग आ आए गई अखियों अखियों मेरे नाई नाते नींदियां न आए ओ ओ सजना सजना बरखा बहार आई अखियों में प्यार लाई अखियों में प्यार लाई ओ सजना। वेरी नाइस। आरती पाटिल की आवाज लास्ट तक आ रही थी। वेरी वेरी गाना नहीं आता है पर मैं सब लोग आपको चुप हो सुना गए। रही सी उनकी आवाज तक जब आई क्लियरली, जब सुनाई देने लगी सब लोग चुप हो गए। वेरी वेरी नाइस। और कौन सा गाना याद आ रहा है? और एक गाना गाओ। आरती जी आपकी आवाज बहुत प्यारी है। बहुत प्यारी है। थैंक यू। या अभी और म्यूजिक प्रोग्राम करेंगे। बोलो। ऋतु गाना गाओ। ऋतु या कुछ भी एक बोलो। वो गाना है ना, वो गाओ ना। कौन सा? ओहो रिमझिम तराने लेके आई बरसात। बरसात याद आए पहली हुई वो पहली मुलाकात रिमझिम ये झिम तराने लेके आई बरसात और वो दूसरा भी एक गाना आगे था। का याद है किसी को? आगे का याद है? रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम न न न न न न ये न गाना सुनो ना। ऋतु के जमाने का ये गाना। गाना सुनो। ये भी एक सॉन्ग है। वो एक रिम झिम झिम झुनमुन झुनमुन भींगी भींगी रुत में हम तुम मिलते हैं। यस यस, वेरी नाइस। एक्चुअली जब गाने का टाइम आता ना लिरिक्स में भूल जाती हूँ। एक्चुअली याद करने चाहिए, लिख के लाना चाहिए। मैंने भी आज सुबह बहुत बिजी थी, मैंने लिखे नहीं। वो तो गाना सबको आता ही होगा। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुम सजन तुमसे मिले हम बरसात बरसात में में तक दिना दिन बरसात में हमसे मिले हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम बरसात बरसात में में। ना 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 आगे के वर्ड्स याद है। ना 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 ओ कैसे भूल कैसे मनाऊं मैं तुम्हारी याद में दिन रैन बिताऊं बिताऊं। तुम न आई तुमको मेरी जान की कसम, प्यार की कसम जान की कसम। प्यार की कसम बरसात बरसात में। में तक दिन ना दे। अच्छा मैं खाली 2 लाइन बताऊं। देखो मुझे बरसात वैसे अच्छी लगती है लेकिन भीगना बिल्कुल पसंद नहीं है। भीगने से पता नहीं ऐसे कुछ अजीब सा लगता है। जिंदगी भर बोलो जिंदगी भर नहीं भूलेगी भूलेगी वो बरसात की रात एक जिंदगी भर अनजान नहीं हसीन भूलेगी मुलाकात की हाथ की रात हाय जिंदगी जिस भर। रात में मेरे दिल ने धड़कना सीखा हाय जिस रात मेरे दिल ने धड़कना सीखा शोक जज्बात सीने में भड़कना सीखा मेरी तकदीर से मेरी तकदीर से निकले वही शर्मात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात एक अनजान मुसाफिर से मुलाकात की रात वेरी नाइस। जिंदगी भर नहीं भूलेगी। वेरी वेरी नाइस। आपके बहुत अच्छा सजनी लगा सबको सावन मिलके। में आपको आग सुनो लगेगी बदन में हाँ घटा बरसेगी नजर तरसेगी मगर फिर भी मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। वेरी नाइस।
एक अमिताभ बच्चन का गाना सुनो। हाँ हाँ बोलो। वो वाला ना, रिमझिम रिम वाला। झिम गिरे सावन। या नहीं नहीं रिमझिम गिरे सावन सावन। सुलग सुलग जाए मन लगे मौसम पे लगी कैसे लगन। लगन झिम झिम रिम झिम गिरे सावन। बीना जी गाओ, बीना नहीं गा रही। नहीं, मैं आपको आए मन। मैं इस गाने का वीडियो खोल के बैठी थी कि दिखो, लेकिन मेरा कैमरा ही ऑन नहीं हो रहा है। कैमरा क्यों नहीं ऑन अच्छा हुआ, लेकिन कोई समझ में नहीं आ रहा। या आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वीडियो तो है ना, ऑडियो तो है ना। ऑडियो है, ऑडियो